الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ کا ایک وفد آیا اور وہ وفد بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا۔ 60 علماء تھے اس میں، اونٹوں پر سوار ہو کے آئے اور انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ تو جب یہود نے دیکھا کہ نصارہ کا ایک وفد آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام نہ قبول کر لیں۔ وہ بھی وہاں پہ آ گئے اور انہوں نے آ کر جو ہے جھگڑا شروع کر دیا، اور اس طرح عیسائی وفد اور یہود کے درمیان جھگڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، ہم پڑھتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نصارہ نہیں ہیں، علی شیء، کسی چیز پر۔ قالت، یہ لفظ اصل میں قالت ہے، اور یہ تا کے نیچے زیر کس لیے آئی؟ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر دی گئی، ورنہ یہ لفظ قالت ہے۔ تو قالت، قاف واو لام، قول اسی سے ہوتا ہے، کہا۔ قالا، اس سے ایک مذکر نے کہا، قالا، ان دونوں نے کہا، قالو، ان سب نے کہا۔ یہ تا 4 طرح ہی استعمال ہوتی ہے، تا کے اوپر جزم، تا کے اوپر پیش، تا کے اوپر زبر اور تا کے نیچے زیر۔ قالت، اس ایک مؤنث نے کہا، اگر تا کے اوپر جزم آ جائے تو اس ایک مؤنث نے کہا۔ قلتو، میں نے کہا، تا کے اوپر پیش آ گئی، میں نے کہا۔ قلتا، تو ایک مذکر نے کہا، تا کے اوپر زبر آ جائے تو قلتا، تو ایک مذکر نے کہا، اور تا کے نیچے زیر آ جائے قلتی، تو ایک مؤنث نے کہا۔ یہ پورے قرآن مجید کا اصول ہے۔ وقالت الیہود، یہ تا کے اوپر جزم، یہ مؤنث کیوں آئی ہے؟ یہود قوم ہے، اور قومیں اور گروہ عربی میں مؤنث ہوتے ہیں۔ تو جو ہے وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نصارہ جو ہے نہیں ہے۔ لیسا، لیسا حرف نفی ہے، ناقص، فعل ناقص ہم اس کو کہتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، لیست، تاکہ وہ جزم آ گئی ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ بھی لیست، یہ جزم دی اس کے اوپر، یہ اس کو ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ لیست نہیں ہے وہ، لستو نہیں ہوں میں، لستا نہیں ہے تو ایک مذکر، اور لستی نہیں ہے تو ایک مؤنث۔ تو یہاں ہے لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، یہ بھی قالت اسی لیے آیا ہے کہ یہ لفظ قالت تھا، تو زیر دی گئی اس کو ملانے کے لیے، اس کے اوپر شد آئی ہے اس لیے اس کو ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ تو نصارہ بھی قوم ہے، اس لیے قالت مؤنث کے لیے ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، نصارہ کس سے ہے؟ نون صاد را، اسی سے ہمارا لفظ نصرت ہوتا ہے، عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ اور یہود کا مادہ کیا ہے؟ ہا وا دال، یہودی اسی سے ہے۔ اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، یہود کسی چیز پر نہیں، علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں۔ دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، اور جو یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز، علی شیء، کسی چیز پر نہیں۔ وہم، واو، حالانکہ ہم وہ سب، یتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، پڑھتے ہیں کتاب۔ یتلون، یا مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تا لام واو، تلاوت کرنا، پڑھتے ہیں۔ اور تلا یتلو تلاوتاً مصدر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا۔ اگر تلا یتلو تلون ہوتا ہے ہو تو ایک آدمی کے پیچھے دوسرے آدمی کا چلنا، اور درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو۔ تو تلایتل تلاوتاً، قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا کہ ہر لفظ، ہر حرف اس کا سمجھ آتا چلا جائے، کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو سمجھ نہ آئے۔ تو یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، کاف جو ہے تشبیہ کے لیے شروع میں جو آتا ہے، حرف تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور ذالک اس میں اشارہ بعید ہے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، نہیں جانتے، یعلمون، یا مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ عالمہ۔ لا یعلمون، نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کی قول کی مانند، یہود اور نصارہ کی قول کی مانند۔ یہاں سے مراد لا یعلمون
कौन है? जो है अहले मक्का, मुशरिकीन मक्का, वो उम्मी लोग थे, वो भी यही बात कहते थे। फल्लाहु, पस अल्लाह, फा पस या तो के लिए आता है, फल्लाहु पस अल्लाह, यहकुम, फैसला करेगा। यहकुम या मुजारे की अलामत है, हा का मीम, फैसला करना। और इसी से लफ्ज़ हाकम भी होता है। और हुक्म कैसा फैसला होता है? ऐसा फैसला जिसमें जुल्म और ज्यादती को रोका जाए। हाकिम जो होता है उसके पास जो है पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, फैसले को नाफज करने की कुव्वत नाफजा उसके पास होती है। काजी भी फैसला करता है, लेकिन काजी के पास कुव्वत जो है नाफजा नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसके इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? हाकिम करता है। यहकुम, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। जो क़यामत है, काफ और मीम इसका मादा है। कामा यकूम होता है खड़े होना। और क़यामत को क़यामत क्यों कहते हैं? क़यामत के दिन लोग कब्रों से निकलकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे। फीमा, उसमें जो कानू वो थे, फी ही, उसमें यख्तलिफून, यख्तलिफून किससे? यामदारी की अलामत वानून जमा के लिए है। इसका मादा खालम फा है। इख्तलाफ लफ्ज हमारा इसी से होता है। और तार अलिफ की इधर से दाखिल हुई है, पूरी की पूरी ग्रामर फ़ाला पे चलती है। जब इफ्ताल पे चलता है जो है बाप पे, तो इसमें ता दाखिल हो जाती है। इख्तलाफ इसी से हमारा, वो इख्तलाफ करते हैं। और खलफ क्या होता है? पीछे, जो इख्तलाफ करता है वो पीछे पड़ जाता है, इसलिए इसको लफ्ज इख्तलाफ करते हैं। फिर देखते हैं हम दोबारा। वकालत यहूदू, और कहा यहूद ने, लैसत नसारा, नहीं है नसारा, अला शाहीन, किसी चीज पर। यहूद जो है वो उन्होंने जब देखा कि नसारा का वफद आया है तो कहीं ईमान न ले आए, वो आके जो है यहूद से झगड़ा करने लगे। और ये आलिम लोग थे, तो इन्होंने क्या कहा कि नसारा किसी चीज पर नहीं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इनका कोई दीन नहीं है। अब जब उन्होंने कहा, ये क्या पढ़ते थे? अल्लाह की किताब तौरात पढ़ते थे, आलिम लोग थे। वकालत नसारा, और कहा नसारा ने, ये भी आलिम लोग आए हुए थे इकट्ठे होकर, उलमा थे बड़े बड़े, 60 ऊंटों पर सवार होकर आए थे। तो उन्होंने वकालत नसारा, और कहा नसारा ने, लैसत यहूद, यहूद किसी चीज पर नहीं है, इनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई दीन नहीं है, अला शैइन, किसी चीज पर नहीं। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। और किताब पढ़ने वालों का हाल क्या है? आपस में एक दूसरे में लड़ते हैं। और आलिम और क्या कहते हैं, जो है यहूद कहते हैं नसारा किसी चीज पर नहीं, किसी कोई बुनियाद नहीं इनकी, इनका कोई दीन नहीं। और नसारा आगे से कहते हैं कि यहूद किसी चीज पर नहीं, इनका कोई दीन नहीं और इनकी कोई बुनियाद नहीं है, हालांकि वो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। हालांकि जो है यहूद, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं माना और इंजील को अल्लाह की किताब नहीं माना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले नसारा जो थे वो इंजील अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हुए थे और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हुए थे, इसलिए वो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुरुस्त थे। कज़ालिक, इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम, जो नहीं जानते उन्हीं की कौल की मानद, यहूद और नसारा की कौल की मानद, उन्होंने भी यही कहा। तो फल्लाहु, पस अल्लाह, यहकुम, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन। यहाँ दुनिया में फैसला नहीं होने का, ये आपस में लड़ते रहेंगे जो है, तो क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। फी में, उस चीज़ के बारे में जो कानून वो थे, फी ही, उसमें यख्तलिफून, इख्तलाफ करते थे। तो क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला इनके दरमियान फैसला करेगा। आज उम्मत मुसलमान हम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से क्या कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। तो ये जो है, हर फिरका अपने आप को जन्नती कहता है, दूसरों को जहन्नमी कहता है। जब तक वो अल्लाह के कुरान को हम नहीं थामेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है? अल्लाह का कुरान, जिस आलम की बात अल्लाह के कुरान के मुताबिक है वो सारा हो गया। और अगर वो अल्लाह के कुरान के मुताबिक नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक नहीं, वो कितना बड़ा आदमी हो, उसकी बात तस्लीम नहीं की जाएगी। तो मुसलमानों में इख्तलाफ कैसे खत्म हो सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जब तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ वाक़ हो जाए तो तुम जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ पलटा दो। उस बात को कुरान और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ पलटाओ कि अल्लाह का क्या हुक्म आया है और रसूल का क्या हुक्म आया है, तो तब इख्तलाफ खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ हर फिरका
अपने आप को जो है जन्नती कहकर और दूसरे फिरके को कत्ल गारत भी करता है और मारता भी है और उसको जहन्नमी भी कहता है। आजकल फेसबुक का हर किसी आदमी के पास है। आप देखें किस तरह जो है उलमा जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो लड़ते हैं और फतवे लगाते हैं। तो इसलिए जब तक अल्लाह के कुरान की तरफ नहीं लौटेंगे उस वक्त तक ये इख्तलाफ ख़त्म नहीं होगा, वरना फिर अल्लाह क़यामत के दिन जो है इनका इख्तलाफ जो है वो ख़त्म करेगा, दुनिया में ये ख़त्म नहीं करेंगे। और इनके दरमियान इख्तलाफ कैसे ख़त्म हो सकता है? अल्लाह के कुरान की तरफ लौटे और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ जब तक नहीं लौटेंगे, वरना ये इल्मी इख्तलाफ होना वो बायस रहमत है कि जब इल्मी इख्तलाफ हो तो एक दूसरे का फिर वो आदमी रिसर्च करता है। तो इसमें जिस तरह इंसानी इज़हान मुख्तलिफ हैं इस तरह राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को जहन्नमी करार देने की और अपने आप को जन्नती करार देने की ये कहाँ से दलील जो है वो पकड़ी कि मैं जन्नती और बाकी सब जहन्नमी हैं? तो ये अल्लाह का कुरान और अल्लाह के रसूल की सुन्नत हदीस को जब तक नहीं पढ़ेंगे इसी तरह एक दूसरे को काफिर करार देते हुए और अल्लाह के पास जब जाएंगे फिर क़यामत के दिन अल्लाह इनके दरमियान फैसला करेगा। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला इन फिरकों से, अल्लाह का इन फिरकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इन फिरकों से महफूज रखे। अपने जो मुसलमान बनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत तुम्हें उस वक्त तक ना आए जब तक कि तुम मुसलमान न हो। तो अपने इस्लाम पर मौत आए तो तब अल्लाह के यहाँ जो है वो कामयाब ठहरेंगे। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।